Hello students, in this video lecture I will show you how to prepare a flexible budget, and this problem is different from the previous problems. Here we have a company, Activa Company Limited, and it produces computer hardware. The estimated unit cost is as under. So the data, if you see the data which has been made available in the problem is at per unit. So we have the per unit cost of direct material, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। इसका मतलब है कि एक यूनिट के लिए 15 रुपए का मटेरियल लगेगा। अगर एक यूनिट फिनिश गुड बनाना है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर जो प्रोडक्ट है इसका, अगर उसका एक यूनिट बनाना है तो डायरेक्ट वेजेस 10 रुपए के होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट 4 रुपए होगी पर यूनिट, और वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए 6 रुपीज पर यूनिट, and in total the total variable cost per unit is 35, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ऑल दीज आर वेरिएबल इन नेचर, वो वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट इज द फिक्स ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट ₹1,00,000। जो भी फिक्स ओवरहेड्स है इस कंपनी के वो 1 लाख है। अब यहाँ पे ये जो 1 लाख दिखा रहा है, इट मीन्स व्हाट, वी हैव द वैल्यू ऑफ फिक्स ओवरहेड्स इन टोटल, मतलब टोटल जो फिक्स ओवरहेड्स होंगे ना वो 1 लाख होंगे, चाहे प्रोडक्शन जितना भी हो वो 1 लाख होगा। यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट है, और जो फिक्स ओवरहेड्स दिए है प्रॉब्लम के अंदर वो टोटलिटी में, मतलब वो टोटल दिए गए हैं। Next, the semi-variable overheads are rupees 50,000 at 100% capacity, that is 10,000 units. Now, this sentence is quite important. From this sentence, now we can say that at 100% capacity, the amount of semi-variable overheads is 50,000 rupees, and at 100% capacity, the volume of output or the level of production is 10,000 units. So 10,000 units is the budgeted number at 100% capacity of the finished goods. Next is the semi-variable expenses vary in stages of rupees 4,000 for each change in output of 1,000 units. Now this sentence is also quite important. If there is a change in the volume of output by 1,000 units, then the semi-variable expenses will vary by rupees 4,000. चलो मान लो अगर आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यहाँ पे कितना दिया है, देखो ये पे दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इन द दैट इज 50,000 एट 100% कैपेसिटी। हाँ, यहाँ पे दिया है कि एट 100% कैपेसिटी, ओके आई शो हियर, look here at 100% capacity the volume of output is 10,000 units, मतलब बजटेड जो प्रोडक्शन है at 100% capacity that is 10,000 units है, and the value of semi variable overheads यहाँ पे देखो that is rupees 50,000। अब प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है कि the semi variable expenses vary in stages of rupees 4,000 for each change in output of 1,000 units। अगर प्रोडक्शन में, अगर वो आप जो भी आपका प्रोडक्शन है अगर उसमें अगर चेंज होता है, चलो मान लो अगर आपका प्रोडक्शन मान लो कि प्रोडक्शन में चेंज ये हुआ है कि चलो मान लो कि प्रोडक्शन 11,000 यूनिट्स का हो गया, होने वाला है 11,000 यूनिट्स, then there is a change in the volume of output by 1,000 units, there is a change in the volume of output by 1,000 units, and in such a case the semi variable expenses will vary by rupees 4,000, मतलब वो यहाँ पे 54,000 होंगे, तो बढ़ेगी वेरिएबल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की अमाउंट बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन आपका 9,000 यूनिट होता है तभी भी आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उसमें डिफरेंस आ रहा है 1,000 यूनिट्स का, and in this situation the value of semi variable overheads will be 46,000 because as per the adjustment the semi variable expenses vary in stages of rupees 4,000 for each change in output of 1,000 units. Next, the selling price per unit is rupees 70, and you are required to prepare a flexible budget at 50%, 70%, 90% and 100% capacities, and determine the profit at each level. Now, one more interesting thing let me tell you of this problem. Now, in this problem, there is a clear-cut classification of cost items in three categories. Now, see, the first four are variable in nature. Now we have the separate sentence for fixed overheads, and then we have the one more category that is semi-variable overheads. Now here
I am going to use the classification of cost base for the preparation of flexible budget. Now here you can see the first category which I am going to mention in the flexible budget of cost is variable expenses, and these four are variable in nature. So I am going to show all these four below variable expenses. The second is fixed expenses. Now we know that fixed overheads will come under the category of fixed expenses, and the next is semi variable overhead, so it will come under semi variable expenses. So the classification of cost, that is variable expenses, fixed expenses, semi variable expenses, I have chosen for the preparation of flexible budget. Now in this problem we have to prepare a flexible budget at 50%, 70%, 90% and 100% capacities. Now you can see here this, you can see this row where I have mentioned 50%, 70%, 90% and 100%, and in the problem here we have that figure that at 100% capacity 10,000 units will be manufactured. So here you see that at 100% capacity the volume of production is 10,000 units. Now you can here also you can see capacity is 100% and the normal activity is 10,000 units. Now the question is, if at 100% capacity the volume of output is 10,000 units, then how much will it be at 90% capacity? Because we are told to prepare a budget at 50%, 70%, 90% capacity, and it is quite important before before preparing the budgets to find out the budgeted output at 50%, 70%, 90% कैपेसिटी। मीन यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बजटेड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, लेकिन मैंने वो कैसे किया है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बजट बनाने से पहले भी आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो कैपेसिटीज है 50, 70, 90 यहाँ पे कितना प्रोडक्शन होगा, एंड दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एट 100% the volume of output is 10,000 units. Now here I am going to make a cross calculation. I will multiply 90 by 10,000 and I will divide it by 100. So by making cross calculation, I will get the value of output at 90% capacity, that is 9,000. And by doing same calculation, I can find out you can find out the volume of output at 70% capacity as well as 50% capacity. Now see here I will show you. See, at 70% capacity it is 7,000 and at 50% capacity it is 5,000. Now let's prepare the budget. I will show you how to prepare a budget. Now in the problem we have the unit cost. जो भी डेटा प्रॉब्लम में दिया गया है that is unit cost. मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 15 है। इसका मतलब क्या, अगर एक यूनिट फिनिश गुड का बनाना है तो कितने रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, 15 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। और ये कौन से लेवल के अंडर दिया है, हमें एट 100% कैपेसिटी पे दिया है। तो सबसे पहले आई विल शो डायरेक्ट मटेरियल वैल्यू 15 बिलो यूनिट कॉस्ट अंडर 100% कैपेसिटी। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 15 रुपीज। नाउ as we know direct material is variable in nature and variable cost per unit always remains constant. तो सबसे पहले यूनिट कॉस्ट जो है at each capacity, that is 90 it will be 15, at 70 also it will be 15, and at 15 also 50 also it will be 15. Now let's calculate the total cost of direct material at each capacity, that is 50, 70, 90 and 100. So I am going to calculate, I'll calculate first the total cost of direct material at 50% capacity. Now यहाँ पे देखो the value of direct material per unit is 15. अगर एक यूनिट के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल का 15 रुपये खर्चा आ रहा है, बजटेड खर्चा 15 रुपये है, तो 5,000 यूनिट पे कितना होगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस कैलकुलेशन करना होगा मुझे। नहीं, क्रॉस कैलकुलेशन नहीं, मुझे खाली मल्टीप्लिकेशन करना होगा बिटवीन unit cost of direct material, that is 15, and the number of units of this level of this capacity. कितने यहाँ पे number of units है, 5,000 है, तो मैं यहाँ पे खाली मल्टीप्लिकेशन करूँगा 15 into 5,000. That's how I'll get the value of direct material total cost at 50% capacity. In the same way, I'll calculate the total direct material cost at 70% capacity. कैसे करना है, जो यूनिट कॉस्ट है मटेरियल का वो 15 रुपये है, उससे खाली उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल। इस यूनिट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 7,000 है, तो 7,000 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया है 1,05,000। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 90% कैपेसिटी।
सेम तरीका वही यूज करना है। मतलब आपको यूनिट कॉस्ट कितना है मटेरियल का 15 है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स एट 90% कैपेसिटी, वो कितने हैं 9000 है। तो 15 इंटू 9000 करने के बाद आंसर आया 1,35,000। मतलब 1,35,000 का बजटेड मटेरियल का खर्चा होगा एट 90% कैपेसिटी। अब उसके बाद यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे, सेम कैलकुलेट करना है। अगर मटेरियल का रेट पर यूनिट 15 रुपये है तो इस लेवल पे 10,000 यूनिट बनने वाला है, तो 10,000 यूनिट पे बजटेड खर्चा कितना होगा मटेरियल का। तो कैसे करेंगे, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल दैट इज 10,000। तो आंसर आ गया है 1,50,000। अब उसके बाद देखो प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या है, दिया गया है डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, उसका वैल्यू है ₹10। तो इसका मतलब अगर एक यूनिट बनाना है तो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर कितना खर्चा होता है, 10 होता है। मतलब एक यूनिट के ऊपर 10 का होता है। अब दैट इज आल्सो वेरिएबल इन नेचर। सो एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, वो कभी बदलती नहीं पर यूनिट। तो वो एट ईच कैपेसिटी दैट इज 50, 70, 90 एंड 100 द यूनिट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट दैट इज ₹10। अब सवाल है कि अबे हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है एट 50% कैपेसिटी ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालनी है एट 50% कैपेसिटी। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वही लॉजिक यूज करना है। अगर एक यूनिट के ऊपर डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है, बजटेड खर्चा 10 रुपए, तो 5,000 यूनिट पे कितना होगा, क्योंकि इस लेवल पे कितने यूनिट्स है, 5,000 यूनिट्स है। तो 10 गुनीले मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है विथ बाय 5,000, तो 50,000 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एट 70% कैपेसिटी वेयर द बजटेड आउटपुट इज 7,000 यूनिट्स। तो कैसे करेंगे इसे, वही लॉजिक यूज करना है। अगर आपका डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए है, तो उसको मल्टीप्लाई करो विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल, तो आंसर आ गया है 70,000। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है हमें एट 90% कैपेसिटी ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस, वही लॉजिक यूज करना है। पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस के ऊपर खर्चा 10 रुपए, उसका मल्टीप्लिकेशन करो इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स है, और इस लेवल की नंबर ऑफ यूनिट्स है 9,000, तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। और यहाँ पे भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे सेम, पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है 10 रुपए, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल, तो उसका आंसर आ गया 1 लाख। अब उसके बाद डेटा के अंदर हमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू पर यूनिट है 4। तो सबसे पहले पर यूनिट को वैल्यू दिखाएंगे यहाँ पे, पर यूनिट दैट इज 4। और हमें मालूम ही है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं। तो वो कांस्टेंट रहेगी एट 50%, 70%, 90% एंड 100% कैपेसिटी। अब अपन कैलकुलेट करेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा पर यूनिट 4 रुपए है, 4 रुपीज़ है, तो 50% कैपेसिटी जहाँ पे 5,000 यूनिट बनने वाले हैं, तो 5,000 यूनिट पे कितना खर्चा आएगा, 5,000 यूनिट पे टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो वही करना है, जो पर यूनिट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 4, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल दैट इज 5,000, तो आंसर आ गया 20,000। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे अपन एट 70% कैपेसिटी, तो कैसे करेंगे, वही लॉजिक हमें यूज़ करना है। तो पर यूनिट कितना है यहाँ पे 4 है, और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल दैट इज 7,000। और उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर का टोटल खर्चा एट 90% कैपेसिटी, मुझे मतलब बजटेड कॉस्ट कितना रहेगा। तो उसका भी वही लॉजिक है, पर यूनिट अगर 4 रुपीज़ है, तो इस लेवल पे 9,000 यूनिट्स बनेंगे, तो उस पे कितना होगा, 36,000 होगा। अब लेट्स कैलकुलेट एट 100% द टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक, मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट दैट इज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 4 विथ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल दैट इज 10,000, तो यहाँ पे आ गया है 40,000। अब उसके बाद और एक है प्रॉब्लम के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स, वो भी वेरिएबल है और उसका कॉस्ट पर यूनिट है ₹6। तो सबसे पहले अपन 100 कैपेसिटी के अंडर यहाँ पे दिखाएंगे ₹6, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जैसे कि आपको मालूम है वो तो कांस्टेंट ही रहती है पर यूनिट, तो 6 दिखा देंगे। अब लेट्स कैलकुलेट, if the value of variable overheads per unit is 6, then how much will it be at 50% capacity on 5,000 units। मतलब 5,000 यूनिट्स के ऊपर वो कितनी होगी, अगर एक यूनिट पे वो 6 रुपए है, तो 5,000 यूनिट पे वो कितनी होगी। तो वही लॉजिक यूज करना है, जो भी यूनिट कॉस्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल दैट इज 5,000।
और वही लॉजिक यूज़ करके अपन 7000 पे भी निकालेंगे। अगर 1 यूनिट पे 6 रुपए है तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे ऑफ दिस लेवल कितने होंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 7000। तो यहाँ पे 42,000 होगी टोटल कॉस्ट। यहीं पे भी वही लॉजिक यूज़ करेंगे 90% कैपेसिटी के लिए। अगर 1 यूनिट पे 6 है तो इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स तो 9000 है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितनी आ गई? 54,000 आ गई बजटेड कॉस्ट। और एट 100% कैपेसिटी अगर 1 यूनिट पे 6 है तो इस लेवल पे तो इस कैपेसिटी के ऊपर तो 10,000 यूनिट्स बनेंगे, तो कितनी होगी यहाँ पे? 60,000 होगी। अब उसके बाद डेटा के अंदर देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो द फिक्स ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 1 लाख। चलो, तो एट 100% कैपेसिटी इन टोटल द वैल्यू ऑफ फिक्स ओवरहेड इज 1 लाख। 1 लाख वैल्यू है फिक्स ओवरहेड्स की। अब हमें तो मालूम है कि जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं वो इन टोटलिटी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, मतलब इन टोटल वो हमेशा वही रहेंगे, 1 लाख ही रहेंगे। चाहे आपका प्रोडक्शन इस कंपनी का चाहे कितना भी हो, लेकिन जो फिक्स ओवरहेड्स है वो इन टोटल 1 लाख ही रुपए रहेंगे एट 50% कैपेसिटी भी, 70 भी, 90 भी और 100 भी, क्योंकि ये टाइम कॉस्ट होती है, ये पीरियड कॉस्ट होती है और वो इनकर होती ही होती है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। इसका और प्रोडक्शन का कुछ डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, ये तो फिक्स्ड ही रहती है हमेशा। अभी इसके बाद अपन निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, मतलब पर यूनिट फिक्स ओवरहेड्स। अब हम निकालेंगे पहले 50% कैपेसिटी के ऊपर निकालेंगे, फिर 70% कैपेसिटी के ऊपर निकालेंगे, फिर 90% कैपेसिटी के ऊपर निकालेंगे, फिर सबसे एंड में 100% कैपेसिटी के ऊपर निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। क्या निकालना है हमें? फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट निकालना है। सबसे पहले 50% कैपेसिटी के ऊपर निकालेंगे। अब यहाँ पे देख लो 50% कैपेसिटी के ऊपर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा और इसका टोटल कॉस्ट कितना है? 1 लाख है। मतलब 5000 यूनिट्स पे 1 लाख है, हाँ 1 लाख रुपीज़ है। तो 1 यूनिट पे कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, जो टोटल कॉस्ट है मतलब टोटल फिक्स ओवरहेड्स है एट 50% कैपेसिटी वो कितने हैं? 1 लाख है। उसको खाली डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल। इस यूनिट के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5000 है। मतलब 1 लाख को मैं डिवाइड करने वाला 5000 से, तो उसके बाद मुझे फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट मिलेंगे एट 50% कैपेसिटी और वो कितने हैं? 20 है। अब मुझे वही लॉजिक यूज़ करना है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट एट 70% कैपेसिटी। अब देखो मुझे यूनिट कॉस्ट निकालनी है 70% की, तो फिक्स ओवरहेड्स कितने होंगे एट 70% कैपेसिटी? लेकिन 70% कैपेसिटी पर जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है दैट इज 7000 यूनिट्स। इसका मतलब 7000 यूनिट पे आपके फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं? 1 लाख रुपए है। तो 1 यूनिट पे कितने होंगे? तो वही लॉजिक यूज करना है जो हमने 50% पे किया था। खाली जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस लेवल। कितने हैं? 7000। उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिजिट्स देखो ज़्यादा है, लेकिन मैं रखने वाला हूँ खाली 2, तो 14.29। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यूनिट कॉस्ट एट 90% कैपेसिटी। वही लॉजिक यूज़ करना है, जो आपका टोटल फिक्स ओवरहेड्स है उसको खाली डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो इस लेवल पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 9000 है। तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट मिल जाएंगे। यहाँ पे भी मैं डिजिट ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मल्टीपल डिजिट्स है, खाली मैं 2 ही लूँगा और फाइनली मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। तो कैसे करूँगा? सिंपल, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स ओवरहेड्स कितनी है? 1 लाख है। मतलब 10,000 यूनिट पे 1 लाख है, तो 1 यूनिट पे कितनी? तो इस लेवल के नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 है, उसको मैं डिवाइड करूँगा 1 लाख को 10,000 से, तो मुझे आंसर आ गया है 10। अभी फाइनली यहाँ पे देखो खाली सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बचे हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है एंड उसका वैल्यू एट 100% कैपेसिटी 50,000। तो सबसे पहले एट्स बिलो 100% यहाँ पे मैं 50,000 दिखा दूंगा इन टोटल, इन द कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट ही है। प्रॉब्लम के अंदर इसको ऐसा बोला नहीं गया है कि ये पर यूनिट कॉस्ट है, और पर यूनिट कॉस्ट कभी इतनी होगी भी नहीं 50,000 प्रॉब्लम के हिसाब से। तो ये 50,000 इन टोटल वैल्यू है। चलो, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा दिया गया है हमें। वो यहाँ मतलब एक एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट कहती है कि जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो वेरी होते हैं, मतलब बदलते हैं। लेकिन किसके साथ बदलते हैं? वो कितने से बदलते हैं?
तो 4000 के डिफरेंस से बदलते हैं, 4000 के डिफरेंस से बदलते हैं। लेकिन कब बदलती है ये कॉस्ट? अगर आउटपुट में 1000 यूनिट का अगर डिफरेंस आता है, चेंज होता है। यहाँ पे देखो, द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी इन स्टेजेस ऑफ ₹4000 फॉर ईच चेंज इन आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट्स। इसका मतलब अगर आउटपुट में आपके अगर चेंज होता है 1000 यूनिट से, तो आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी चेंज होगा। कितने रुपए से होगा? तो 4000 रुपीज़ पे से होगा। अब यहाँ पे देख लो, 10,000 का प्रोडक्शन है और 10,000 पे कितनी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस? 50,000 है। अगर आपका प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स हो गया, मतलब 1000 का डिफरेंस आ गया है, चेंज हो गया है प्रोडक्शन में, तो आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी 4000 का चेंज होगा। और यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 4000 से कम हुए हैं, 46,000। अगर मैं प्रोडक्शन 8000 कर दूँ, चलो मान लो मैंने 8000 कर लिया, तो ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है और 4000 से कम होगी, तो मतलब ये 42,000 होगी। अगर मैंने वो 7,000 रुपीज़ कर दी, कितनी कर दी? 7,000 कर दी, तो ये फिर से 4,000 से कम होके 38,000 हो जाएगी। अगर मान लो मैंने 6,000 कर ली, 6,000 कर ली या फिर 5,000 कर ली, तो 6,000 के केस में जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, वो 4,000 से फिर से उसके अंदर डिडक्शन आ जाएगा 4,000 से। मतलब ये 38 से 34 पर आ जाएगी और एट अ लेवल ऑफ 5,000 ये 30,000 पे आ जाएगी। तो आपको पता च समझ में आया? जैसे ही आपके प्रोडक्शन में 1000 का डिफरेंस होगा आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस में, मतलब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी 4000 का डिफरेंस होगा, बिकॉज 1000 चेंज इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इक्वल्स चेंज ऑफ ₹4000 इन द वैल्यू ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। यही वो एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, 10,000 के लिए कितना है वैल्यू है? 50,000 है। अगर 10,000 से प्रोडक्शन 9,000 पे आ गया, मतलब 1000 का डिफरेंस होगा, तो 4,000 से ये कॉस्ट कम हो जाएगी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आ जाएगा 46,000, 46,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो, 7,000 मतलब प्रोडक्शन जो है, तो प्रोडक्शन लेवल में जो मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफरेंस कितने से आ रहा है? 2000 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 9,000 टू 7,000, मतलब 2000 का डिफरेंस आ रहा है। और 1000 पे वैल्यू में कितना चेंज होता है? 1000 पे 4000 का चेंज होता है। इसका मतलब 2000 यूनिट्स पे 8000 का चेंज होगा। मतलब 46 में से 8000 माइनस करने पड़ेंगे, मतलब कितना होगा? 38,000 आ जाएगा यहाँ पे, 38,000 आएगा। अभी वापस यहाँ पे देख लो, 50% कैपेसिटी पे क्या हो रहा है? देखो, 7,000 से 5,000 की बात अब हम कर रहे हैं, मतलब आउटपुट में 2,000 यूनिट का फ़र्क आएगा, और 1000 यूनिट पे जो फ़र्क वैल्यू के अंदर आता है, वो 4,000 रुपए का आता है। अगर प्रोडक्शन हमारा 2,000 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू है वो 8,000 से कम हो गया, 8,000 से कम हो गई। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। देखो, मैंने 2 बार समझाया इसको, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट, अभी-अभी और इस टेबल से भी समझाया। अगर आप देख लो, 5,000 पे 30,000 दिख रहा है, दिख रहा है। 7,000 पे 38,000 दिख रहा है, तो दिख रहा है। 9,000 पे 46,000 दिख रहा है, तो दिख रहा है। हाँ, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। नाउ लेट्स कैलकुलेट। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कैसे निकालने हैं एट ईच कैपेसिटी। मतलब 50 पे सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितने होंगे, 70 पे कितने होंगे, 90% पे कितने होंगे और 100% पे कितने होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके यहाँ पे पर यूनिट। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट कैलकुलेट किया ना, उसी तरह से हमें सेमी वेरिएबल्स ओवरहेड्स पर यूनिट कैलकुलेट करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 30,000 है, तो 30,000 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना है? 5,000 है, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 30,000। मतलब 5,000 यूनिट्स के ऊपर जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है वो 30,000 रुपीज़ के, 5,000 यूनिट के ऊपर, मतलब एक यूनिट के ऊपर कितने के है वो? 6 रुपीज़ के। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन, सेम वही तरीका का यूज़ करना है। सो 38,000 को डिवाइड करूँगा मैं, मतलब टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को डिवाइड करूँगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कितना आ गया? 5.4286। तो नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, मैं खाली 2 ही रखने वाला हूँ, सो 5.43। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फिक्स सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट एट 90% कैपेसिटी। वही लॉजिक यूज़ करना है। 46,000 जो बजटेड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है दैट 90% कैपेसिटी, उसको मैं डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ यूनिट्स से, तो 9,000 यूनिट्स है, तो 9,000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 5.1111, तो भी इसके लिए मैं 2 ही डिजिट रखूँगा खाली। ओके, अब फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। सेम वही लॉजिक, अगर 10,000 यूनिट के ऊपर
टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 50,000 है, तो 1 यूनिट के ऊपर कितने रहेंगे? मतलब 50,000 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000। तो ये आ गई ₹5। अब कैलकुलेट करेंगे यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली at 50% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी, 90% एंड 100% कैपेसिटी। मतलब हर एक कैपेसिटी के ऊपर यूनिट कॉस्ट कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यूनिट कॉस्ट करूँगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट। अब यहाँ पे देखो जितने भी फिगर्स आपको दिखाई दे रही है, इसमें से कोई भी ऐसी फिगर नहीं कि जिसके डिजिट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं एडिशन कर सकता हूँ, मैंने एडिशन कर लिया, दैट इज 61। यहाँ पे भी मुझे एडिशन करना है, तो वो आ रहा है 3,05,000। इसका मतलब क्या है कि यूनिट कॉस्ट जो है एट 50% कैपेसिटी, मतलब एक यूनिट के ऊपर 61 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है। बजटेड खर्चा कितना है? 61 रुपीज़ का है। और 5,000 यूनिट के ऊपर टोटल बजटेड खर्चा कितना है? 3,05,000 का है। अब मुझे यूनिट कॉस्ट निकालनी है एट 70% कैपेसिटी। पर यहाँ पे देख लो, जो 14.29 है या फिर 5.43, यहाँ पे मल्टीपल डिजिट्स है, लेकिन मैंने खाली 2 ही कंसीडर करे। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तब आपको यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है, ध्यान 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 से सुनो, यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले डू वन थिंग, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। सो एट 70% कैपेसिटी ऑन 7,000 यूनिट्स, द टोटल कॉस्ट इज 3,83,000। मतलब 7,000 यूनिट के ऊपर जो टोटल खर्चा है दैट इज 3,83,000 है। तो पर यूनिट कितना होगा? तो पर यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल खर्चा कितना है? 3,83,000। तो 3,83,000 को डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 7,000। तो कितना आ गया? 54.714। इसको मैं 2 डिजिट कर लेता हूँ, तो 54.71। अब मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, जब भी यूनिट कॉस्ट के अंदर अगर कोई फिगर ऐसी है जिसके मल्टीपल डिजिट्स है, मतलब 2 ही नहीं है, खाली 2 नहीं है, मल्टीपल डिजिट्स है, तो उस सिचुएशन में आपको खाली 2 ही डिजिट्स दिखाने हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन यूनिट कॉस्ट निकालने के टाइम पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिशन किया था, हाँ, ऐसा एडिशन यहाँ पे नहीं करना है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालो और टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, आपको यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो, जो 11.11 है, 5.11 है, ये 2 फिगर ऐसी है कि जिसके मल्टीपल डिजिट्स है। और इस सिचुएशन से में मैंने आपको बोला, अगर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो इसका एडिशन मत करो। अगर आप एडिशन करके निकालोगे, खाली आप 2 डिजिट ही कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी तो यूनिट कॉस्ट दिखेगी विच मे नॉट बी इन रिकनसाइल विद द टोटल कॉस्ट। ऐसा हो सकता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे करेक्ट ही फिगर मिलेगा। हाँ, लेकिन आप वैसे मत करना, आप खाली पहले टोटल कॉस्ट निकालो और फिर टोटल कॉस्ट निकालने के बाद इसको डिवाइड करो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो ऑफ दिस टेबल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 9,000। तो यहाँ पे आ रही है 51.222। तो इसको मैं 2 डिजिट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे देखो, किसी भी फिगर के डिजिट्स नहीं, तो यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हो और यहाँ पे भी एडिशन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देख समझ लो इसका मतलब क्या है यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। देखो एट 50% कैपेसिटी जो यूनिट कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना है? 61 है। और 5,000 यूनिट बनाने का खर्चा कितना होगा? 3,05,000 होगा। एट अभी यहाँ पे देखो, एट 90% कैपेसिटी एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना होगा? 51.22। मतलब यूनिट कॉस्ट कम हो रही है एट 90% कैपेसिटी, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 4,61,000। अगर आप 100% कैपेसिटी से प्रोडक्शन करते हो तो आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? खाली 50 रुपीज़ होगी। हाँ, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 5,00,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है और इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्रॉब्लम के अंदर कितनी है? 70 है। तो सबसे पहले 70 को मैं दिखा देता हूँ एट 100% कैपेसिटी। तो 70 है और ये सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स्ड है इस प्रॉब्लम के अंदर। मतलब प्रॉब्लम में ऐसे कहाँ पे भी नहीं बताया गया कि सेलिंग प्राइस बदलने वाली है, तो ये फिक्स्ड है हमारे लिए। तो हर एक लेवल पे सेलिंग प्राइस फिक्स्ड होगी। अब देख लो, अब हमें सेल्स वैल्यू इन टोटल निकालनी है, टोटल सेल्स वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे टोटल सेल्स वैल्यू? सिंपल है। देखो, अगर पर यूनिट पे कितना सेल्स वैल्यू है? 70 है। तो 5,000 यूनिट बेचने के बाद टोटल सेल्स वैल्यू और टर्नओवर कितना होगा? तो 70 इंटू 5,000 करना है, तो आंसर इज 3,50,000। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे एट 70% कैपेसिटी द टोटल सेल्स वैल्यू। सेम वही लॉजिक, अगर 70
एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है, तो इस यूनिट पे तो नंबर ऑफ यूनिट 7000 है, तो 7000 का सेल्स वैल्यू कितना होगा 4,90,000। यहाँ पे भी निकालेंगे, वही लॉजिक यूज करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो 70 है और इस लेवल के तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 9000, तो 9000 यूनिट का सेल्स वैल्यू कितना होगा 6,30,000 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा एट 100% कैपेसिटी उसे निकालेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 लाख आ गए। अब निकालेंगे प्रॉफिट, पर यूनिट भी निकालेंगे और टोटल प्रॉफिट भी निकालेंगे एट 50%, 70%, 90%, 100% कैपेसिटी के ऊपर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो सेल्स वैल्यू 70 है और जो ये वैल्यू है टोटल कॉस्ट 61 है एट 50% कैपेसिटी, देयरफॉर एट 50% कैपेसिटी द प्रॉफिट पर यूनिट इज 9। तो टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे 70 इंटू 5000 यूनिट्स, हाँ 3,50,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 45,000 होगा। 70 इंटू 5000, यहाँ पे 45,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब प्रॉफिट निकालेंगे अपन, तो कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे 4,90,000 माइनस 3,83,000, और इसी हिसाब से यहाँ पे भी प्रॉफिट निकालेंगे, यूनिट प्रॉफिट निकालेंगे एट 70% कैपेसिटी। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 70% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस 70 है और यूनिट कॉस्ट जो है वो 54.71, तो 15.29 पर यूनिट प्रॉफिट होगा। अब हम पर यूनिट प्रॉफिट निकालेंगे एट 90% कैपेसिटी, तो ये भी सिंपल है, सेलिंग प्राइस 70 है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है एट 90% कैपेसिटी 51.22, इन दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी। अब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू तो इतना है 6,30,000 और टोटल कॉस्ट है 4,61,000, इन दोनों का डिफरेंस है 1,69,000 जो कि टोटल प्रॉफिट होगा एट 90% कैपेसिटी। अब अपन यूनिट प्रॉफिट निकालेंगे एट 100% कैपेसिटी जो कि 20 है, the difference between sales 70 and unit cost 50 at 100% capacity, और जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम और ये है आपका प्रॉफिट। दिस इज यूनिट प्रॉफिट एट 50% कैपेसिटी, दिस इज टोटल प्रॉफिट एट 50% कैपेसिटी। Likewise, 18.78 is the unit profit at 90% capacity, or 1,69,000 is the total profit. So this problem is over. Thank you.